आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। FK आसाम चाय हर घूंट में ताजगी लाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़्ज़लल आलिम अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। सुनन इब्न माजाह। आलिम की फजीलत आबिद के मुकाबले में ऐसी है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के वालिद को गुजरे 5 दिन का अरसा हुआ है। काबीनी रुफ़क़ा का उनके घर महबूब नगर पहुँचकर पुरसा देने का सिलसिला जारी है। आज रियासती वजीर बराए सेहत ईटला राजेंद्र, रियासती वजीर बराए मजदूर मल्ला रेड्डी ने महबूब नगर पहुँचकर रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात की और उनके वालिद की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए और अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। जिला महबूब नगर मुस्तकर के एक प्राइवेट हॉल में बैनुल अक़वामी एसोसिएशन ऑफ लॉयंस क्लब और ज़िले क्लब 320A का एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर गोविंद राज मल्टी बेल्ट ज़िले न्यू क्लब 320 चेयरमैन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि लॉयंस क्लब बैनुल अक़वामी सतह पर 104 साल क़ब्ल अमेरिका में आगाज़ होकर सारी दुनिया में मुख्तलिफ फलाही कामों में मसरूफ़ है और लॉयंस क्लब वो शोबा है जो सारी दुनिया में हर वक्त फलाही काम में मसरूफ़ रहता है। इसी तरह ज़िला महबूब नगर और तेलंगाना में मौजूद 7 क्लब और कर्नाटक में 7 क्लब कुल 14 क्लब हमा वक्त फलाही काम को तरजीह देते आ रहे हैं। లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ 104 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమై అమెరికాలో ప్రారంభమైనా కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేస్తూ ఉంది. మనం ఇదివరకు అనేవాళ్ళం బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం
అస్తమించని సామ్రాజ్యం అని. అలాగే లయన్స్ క్లబ్ సంస్థ కూడా అస్తమించని సామ్రాజ్యం, ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కూడా 24 గంటలు సేవా కార్యక్రమాలు అందిస్తున్నది. ఇక మన లోకల్గా వస్తే మహబూబ్ నగర్లో ఉన్నటువంటి క్లబ్బులు, తెలంగాణలో 7 క్లబ్బులు, తర్వాత కర్ణాటక పక్కనున్న కర్ణాటకలో 7 క్లబ్బులు కలిపి 14 క్లబ్బులతో ఒక రీజన్ అనబడుతుంది. ఈ యొక్క మల్టిపుల్ 320లో 5 రీజన్స్ ఉన్నాయి. 5లో ఈ శేషాచలం రీజన్ 14 క్లబ్బులతో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు, సైట్ ఫస్టే తీసుకోండి, తర్వాత హంగర్ రిలీఫ్ తీసుకోండి, డయాబెటీసే తీసుకోండి, అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ రీజన్లో ఉన్నటువంటి 2 ప్రముఖ ప్రాజెక్టులు చెప్పాలి. ఒకటి రామరెడ్డి హాస్పిటల్, ఈ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి యనగొండ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది పేదలకి మన కంటి ఆపరేషన్లు చేస్తూ అనేక సేవలు అందిస్తుంది. అలాగే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాయచూరు పట్టణంలో స్కూలు గత 40 సంవత్సరాల పైగా పేద విద్యార్థులకి సేవలు అందిస్తూ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తూ సేవ చేస్తుంది. ఇవి 2 ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు కాకుండా అనేక హెల్త్ క్యాంప్సే కానివ్వండి, మరి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్సే కానివ్వండి, ఈ 14 క్లబ్బులు చేస్తున్నాయి. దీనికి తోడుగా ఆక్సిలరీ వింగ్ అయినటువంటి లియో సంస్థ 1957 సంవత్సరంలో మొదలైంది. ఈ లియో సంస్థ ఇక్కడ మహబూబ్నగర్ జెమ్స్ అని ఒక లియో క్లబ్బు, అలాగే రాయచూర్లో నిన్ననే స్టార్ట్ అయింది రాయచూర్ వేదాంత. ఈ 3 క్లబ్బులు కూడా అనేక సేవాకార్యం. ఎందుకంటే ఈ లియో క్లబ్స్ ఏంటంటే ఆక్సిలరీ వింగ్గా యువతని మరి డెవలప్ చేసుకోవడానికి, వాళ్ళలో సర్వీస్ లర్నింగ్ అనే నేర్చుకోవడానికి అని చెప్పేసి యువతని ప్రోత్సహిస్తుంటుంది ఈ లయన్స్ క్లబ్స్. ఈ యువత ద్వారా, తర్వాత లయన్స్ సభ్యుల ద్వారా ప్రజావళికి సేవ చేయాలని చెప్పేసి మా యొక్క ఆతురత. అయితే ఇక్కడ రీజన్ హెడ్ మన అమృ శ్రీహరి గారు రీజన్ హెడ్గా ఉన్నారు. వారి నేతృత్వంలో ఈ 14 క్లబ్బులు ఈరోజు ఈ రీజన్ మీట్లో ఏంటంటే ఈ గత 8 నెలలుగా జరుగుతున్నటువంటి సేవల్ని రివ్యూ చేసుకోవడం కాకుండా ఇక మిగతా 4 నెలల్లో కూడా చేయవలసిన సేవలను వాళ్ళకు ఉత్తేజపరచడానికి, వాళ్ళకు కొన్ని బహుమతులు అందించి వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళని మాట్లాడడానికి కొంతమంది వక్తలతో వాళ్ళతోని ప్రోత్సహింపజేయడానికని ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. जिला महबूब नगर मुस्तकर के मस्जिद इबादुर रहमान के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में अनासिरा खानम, मरकज़ी सेक्रेटरी शोबे ख़वातीन और अरहमना ने शिरकत करते हुए कहा कि मजबूत ख़ानदान और मजबूत समाज के उन्वान से 10 रोज़ा मुहिम बतारीख़ 19 फरवरी ता 28 तक मुल्कगीर तौर पर जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन की जानिब से अमल में लाया जा रहा है, जिसका मकसद मजबूत ख़ानदान के ज़रिए मुल्क को सेहतमंद समाज फराहम करना है। इस मौके पर यह भी इत्तला दी गई कि GIO महबूब नगर यूनिट की जानिब से तकरीरी और तहरीरी और तराने के मुकाबले में 27 फरवरी को मुनक्किद किया जाएगा और तमाम इंटर और डिग्री के तलबा से शिरकत करने की अपील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मजबूत ख़ानदान इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन का बुनियादी इकाई है और जमात इस्लामी शोबे ख़वातीन ने इस बात को महसूस किया कि हमारे समाज में और हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जहाँ बुराइयाँ जड़ पकड़ रही हैं, उसी के साथ साथ आज ख़ानदानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। ख़ानदान एक दूसरे से दूर हैं, ख़ानदान एक दूसरे से वाकिफ़ नहीं है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मोहब्बत, हमदर्दी और मअद्दत का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये सारी चीज़ों को महसूस करते हुए मुल्कगीर सतह पर जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन ने इस बात का बेड़ा उठाया कि सारे मुल्क के तमाम अज़ला में, शहरों में और ख़वातीन के अंदर बेदारी पैदा करते हुए इस बात की कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हमारे ये ख़ानदान जहाँ पर कमज़ोरियाँ पैदा हो गई, कमज़ोरियों का शिकार है,
तो वो कमज़ोरियाँ उनकी दूर हों और ख़ानदान आपस में जुड़े रहें, आपस में मोहब्बत और उख़ुव्वत पैदा हो, आपस में दिल जो कटे हुए हैं, फटे हुए हैं, वो दिल एक दूसरे से जुड़े रहें। और इसके साथ साथ समाजी जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों का अगर हम इजहार करें तो लातादाद ख़राबियाँ, लातादाद बुराइयाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं। आप ले लीजिए, जहाँ ख़ानदान की बात आ रही है, वहीं पर हम अगर जायज़ा लेकर देखें तो हमारी मुस्लिम ख़वातीन जो मग़रिबी तहज़ीब की दिलदादा हैं, उन ख़वातीन का मामला ये है कि वो इस्लाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारना नहीं चाहते, इस्लामी तालीमात को से अपने आप को वाकिफ़ करवाना नहीं चाहते, जिसके नतीजे में आज हमारी सोसाइटी, हमारी माशरे में हमारे नौजवान नस्ल निस्वां, हमारे नौजवान लड़के जो मग़रिबी तहज़ीब के दिलदादा हैं, आज शादी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि शादी एक दुखियानूसी चीज़ है, एक दुखियानूसी रस्म है। उसकी बजाय ये चाहते हैं कि हम बग़ैर शादी के अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि अगर शादी करेंगे तो ज़िम्मेदारियां उन पर आयद हो जाएंगी और उसके ज़रिए से बच्चे पैदा हो जाएंगे और बच्चों की परवरिश करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। गर्ज़ जैसे आजकल देख रहे हैं आप, कॉलेजेस में बॉयज़ फ्रेंड और गर्ल्स फ्रेंड का रिवाज चला आ रहा है। जो बॉयज़ फ्रेंड से इनके ताल्लुक़ात होते हैं तो बस यूँ ही शादी के बग़ैर वो अपने ताल्लुक़ात को जारी रखना चाहते हैं, और इससे माशरे में जो बुराइयाँ, जो खबासतें पैदा हो रही हैं, इसका अंदाज़ा उन्हें नहीं है। और इसी के साथ डॉरी सिस्टम हमारे पास चला आ रहा है, जहेज़ के नाम पर कई दुल्हनों को जलाया जा रहा है। लेकिन ये सारी ख़राबियों के बावजूद भी आज हमारी हुकूमत बिल्कुल खामोशी का मुजाहरा कर रही है। अगर वक्ती तौर पर सज़ा सुना भी दे तो वो सज़ा देती नहीं है और कोई सुनवाई उसकी अदालत में होने नहीं पाती। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी लड़कियों का, हमारे नौजवान लड़कों का तहफ़्फ़ुज़ हो और हम बड़े पैमाने पर अपनी बहनों को इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ करते हुए उसी के साथ साथ हम अपने नौजवान बेटों को, नौजवान बेटियों को इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ कराते हुए ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम उम्मत मुस्लिमा में पैदा हुए हैं और हम खैर उम्मत है, लिहाजा हमारा फ़रीज़ा ये है कि माशरे की फैली हुई बुराइयों का, ख़राबियों का जायज़ा लेते हुए उन ख़राबियों को दूर करें अपने किरदार से, अपने अमल से। और हम ये चाहते हैं, हम ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये काम सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करेंगे, अपने ख़ानदान से शुरू करेंगे। ख़ानदान में वो माहौल बनाएंगे, घरों में वो माहौल बनाएंगे, बच्चों की ऐसी तरबियत करेंगे और बच्चों का वो माहौल बनाते हुए उनको भी इस्लामी राह पर लाने की फ़िक्र कोशिश करेंगे। इस्लामी रोशनी हर घर में फैले और हमारे घर इस जिला रंगारेड्डी के हल्के शादनगर मुस्तकर के वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 1 में मुकामी रुकन असम्बली अंजय यादव की निगरानी में टीआरएस पार्टी रुकनियत साजी मुहिम प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस रुकनियत साजी मुहिम प्रोग्राम में रुकन पार्लिमान रामुलू मन्नी श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। वार्ड नंबर 10 में मुनाकिदा रुकनियत साजी मुहिम से इंचार्ज एमपी रामुलू ने कहा कि कुछ लोग तेलंगाना हुकूमत की तरक्यात से जलकर अपोजिशन जमातें गैर ज़रूरी सियासत कर रहे हैं और मजीद कहा कि कांग्रेस और बीजेपी वज़ीर आला केसीआर के तई अपनी ज़ुबान को बेलगाम कर रहे हैं, जिसको तेलंगाना आवाम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। जीके मास्टर शोटोकॉन कराटे डो इंडिया के ज़ेर एहतमाम जरचल्ला मुस्तकर में सीनियर कराटे मास्टर मुमतहिन इलियास बिन सिद्दीकी और एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद गौस की निगरानी में 20 तलबा को 3 माह से तरबियत देते हुए आज ग्रेडिंग बेल्ट टेस्ट मुनक्किद करवाते हुए उन्हें सर्टिफिकेट पेश किए। इस मौके पर कराटे मास्टर गौस ने कराटे की ज़रूरत और अहमियत की वजाहत की। इस मौके पर मार्केट डायरेक्टर अब्दुल हबीब, चरचल्ला कांग्रेस टाउन सदर सैयद मिनहाज, एमआईएम कायद यासर, कराटे मास्टर सैयद अशफाक और दीगर मौजूद थे। चरचल्ले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अजमत अली की रिपोर्ट।
ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ మహబూబ్ నగర్ జడ్చల్ల పట్టణంలో కరాటే బెల్ట్ ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ఈ క్లబ్కు షిహాన్ జి కృష్ణయ్య అనే పెద్ద డైరెక్టర్, ఫౌండర్, చీఫ్ ఇన్స్ట్రక్టర్గా ఉన్నారు. మరియు జడ్చల్లలో స్థానిక సీనియర్ కరాటే మాస్టర్ మొహమ్మద్ గౌస్ మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ విద్యార్థులు 20 మెంబర్స్ విద్యార్థులు వాళ్ళ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఇలా కరాటేలో బెల్ట్ సాధించారు. ముఖ్యంగా మార్షల్ ఆర్ట్స్ జడ్చల్లలో ఒక గుడ్ హెల్త్ కొరకు, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కొరకు ఎన్నో బ్రాంచెస్ మహబూబ్నగర్ జిల్లా వరకు, రాష్ట్రం వరకు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరియు ముఖ్యంగా సీనియర్ కరాటే మాస్టర్ దాదాపు 18-20 ఇయర్స్ నుంచి సీనియారిటీ ఉన్న మొహమ్మద్ గౌస్ కరాటే మాస్టర్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ విద్యార్థులు బెల్ట్ ఎగ్జామ్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరియు ప్రత్యేక మాస్టర్ నిర్వాహకు గౌస్ మాస్టర్ని శుభాకాంక్షలు మా కరాటే క్లబ్ తరఫు నుంచి తెలుపుతున్నాము. విద్యార్థులని కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. మరియు ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమంలో మన స్థానిక మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు సయ్యద్ మినాజ్ గారు, మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ మొహమ్మద్ హబీబ్ గారు, స్థానిక నాయకులు మొహమ్మద్ యాసర్ గారు, నసీర్ గారు, అఖిల్ గారు, మరి సీనియర్ ఇన్స్ట్రక్టర్ అష్వాక్ గారు, ఇలాంటివి మాస్టర్ కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. విద్యార్థులని బెల్ట్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా అవార్డు చేయడం జరిగింది. మరొక जिला रंगारेड्डी के शादनगर मुस्तकर में मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में राजस्थान रॉयल दक्कन चार्जर्स आमने सामने थे। इस फाइनल मुकाबले में केशमपेट दक्कन चार्जर्स ने जीत दर्ज कराई। इस आखिरी फाइनल मैच में सदरनशीन बल्दिया नरेंद्र, YSR CP मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद गौस, अकुला प्रदीप, VRO रमेश और दीगर मौजूद थे। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। सालाना जलसा तकसीम असनादात और इनामात और जलसे असलाह मुआशरा मदरसा मदीनतुल उलूम शोबे अरबिया और तजवीदुल कुरान मुल्हका जामिया निज़ामिया बतारीख 6 मार्च मुनक्किद होगा। इस खुसूस में आज एक सहाफ़ती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसको मौलाना अलहाज मोहम्मद ज़हीरुद्दीन नक्शबंदी इमाम व ख़तीब मक्का मस्जिद ने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई दहों से मदरसे में दीनी तालीम के ज़रिए मिल्लत के नौनिहालों को संवारा जा रहा है। इस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी शेखुल वाक़ुला जामिया निज़ामिया शिरकत करेंगे और इस जलसे की सरपरस्ती अब्दुल्ला बिन मोहम्मद क़ुलैदी सदर कमेटी फरमाएंगे। आवाम से अपील की गई कि इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करें। चर्चले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अज़मत अली की रिपोर्ट। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसे मदीनतुल उलूम शोबे अरबिया तजवीदुल कुरान मुल्हिका जामिया निज़ामिया कई दहों से दीनी खिदमात अंजाम दे रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी 6 मार्च बरोज़ हफ्ता को अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसा इस्लाह मुआशरा व असनाद व इनामात और जामिया निज़ामिया से कामयाब तलबा व तालिबात को सिल्वर मेडल्स और मदरसे मदीनतुल उलूम से कामयाब तलबा तालिबात को दीगर इनामात से नवाजा जा रहा है। इस जलसे की सरपरस्ती अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन क़ुलैदी साहब फरमा रहे हैं और ज़ेर निगरानी नायब सदर शेख अब्दुल मुनाफ साहब फरमाएंगे। और इस जलसे में मेहमान मुक़र्रिर हज़रतुल अल्लामा सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला शेखुल माक़ूलात जामिया निज़ामिया का बसीरत अफ़रोज़ ख़िताब होगा। और मेज़बान उलमा में भी हाफ़िज़ क़ारी अलहाज जाफ़र अली साहब और हाफ़िज़ क़ारी अलीमुद्दीन साहब शिरकत कर रहे हैं, जिसमें तलबा और तालिबात तालीमी मुज़ाहरा भी पेश फरमाएंगे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमको दीनी खिदमात और जो दीनी खिदमात इंतज़ामी कमेटी अंजाम दे रही है, उन्हीं तमाम हज़रात को अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।